Okay, this is Dr. Shaptez here again. Uh, can all of you hear me? Just one person can just write it in the chat that yes, you can hear me. That's good. Okay, so we finished our last lecture at when we were studying the third degree heart block, which was the complete heart block. And just to summarize it once again, I told you that this is a complete heart block and no impulse which is generated by the SA node, it is passed on to the ventricles. So there is a block in the AV node, right? So AV node is completely blocked. It's not allowing any impulse to pass from the atria to the ventricles. So what will happen? Atria will beat at their own rhythm, which is being generated by the SA node, and the ventricles will generate on a rhythm which is either being generated by the bundle branch or the Purkinje fibers or the ventricular muscle itself, right? So as we saw in the previous slides, let me just go to the previous slides, that there is no association between P wave and the QRS complex, because the P wave is the result of atrial contraction that is contracting at the rate that is generated by the SA node, right? And the QRS complex is the ventricular contraction in ECG, and that is being that rhythm is being generated by the either the bundle branch block of either the bundle branch or the Purkinje fibers or the ventricular muscle itself. So there are more P waves than the QRS complex, and there is no correlation between P waves and the QRS complexes. That's what we studied last time. This is one diagram to show that. This is one diagram that is showing this, that there is one, two, three P waves and then a QRS complex. Again, three P waves and a QRS complex. Then two P waves and a QRS complex. So there is one thing is that there is no set pattern between the P waves and the QRS complexes because they are not associated to each other. Normally they are, but in this case, in the third degree heart block, they are not. Okay, this is another diagram. If we saw that day, that this QRS complex, it is being shown after sometimes after two P waves, sometimes after three P waves, and the atrial rate shown over here is 107, and the ventricular rate shown over here is 43, right? So they don't have any association with each other. They are totally dissociated. Okay, I have seen the request, but tell me one thing. Are you going to study the whole medical after this first year and rather during this first year and afterwards in Urdu? Is it going to be so? My question is, and my request would be that please try to understand this. It cannot be done in Urdu. It is something strange. Either you tell me that you have proper translations in Urdu and your syllabus, your books are in Urdu. Yes, then I will go for that. But please, you are medical students, you have come here with very good marks, and you are destined to be doctors. So what's wrong? If you still say, what I can do is that I'll try to repeat the concepts in Urdu as well. I'll try to do that. But if you say that I can do the whole lecture in Urdu, that would be a difficulty for me. I'm not saying that I know English very well. Probably I do, but that is not a benchmark or a yardstick for the intelligence. That's just that I know a language. That's it. Nothing more than that. So I'm not saying that I'm more intelligent than you guys. You guys are young. You have fresh minds. You must be much more intelligent than I am. But the thing is that this is the this is the medium of teaching. This is the medium of even reading. That's the language that you're going to get the books in. That's English. So please bear with me.
I'll try my best. I'll try my best to come to Urdu as well. It's not that I won't do that, but let it be in English mainly. Okay. So what I was telling that there is no association, there is no certain pattern between the P waves and the QRS complex. Okay, I'm okay with this. I'll do this. ठीक है? तो यहाँ मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, क्योंकि ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, कोई जो इम्पल्स है जो एट्रिया में अराइज हो रही है ड्यू टू एसए नोड, वो आगे ट्रांसफर नहीं हो रही, ट्रांसमिट नहीं हो रही वेंट्रिकल्स में, ठीक है? तो इसीलिए कभी जो है वो एट्रिया जो अपने रिदम पे बीट कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स जो है वो अपने रिदम पे बीट कर रहे हैं, ठीक है? सो दैट इज वाई आप देखते हैं कि कभी 2 पी वेव्स के बाद एक क्यूआरएस आ रहा है, कभी 3 के बाद आएगा, कभी हो सकता है 4 के बाद आएगा, ठीक है? जैसे उसने नीचे ये इस डायग्राम के नीचे लिखा भी हुआ है, atrial rate is 107, ventricular rate is 43. So there is no pattern, ठीक है? जैसे आप ईसीजी में देख भी रहे हैं। ओके, ये तो हमने उस दिन कर लिया। अब आएंगे आगे हम स्टोक्स एडम सिंड्रोम पे, जो इसी का आगे कॉन्सिक्वेंस है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक का कॉन्सिक्वेंस है, राइट? सो स्टोक्स एडम सिंड्रोम इज द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब इसके आगे कुछ कंपोनेंट्स हैं स्टोक्स एडम सिंड्रोम के, वो हमने देखने हैं, ठीक है? ओके, सो जब कंप्लीट एवी ब्लॉक इंप्लीमेंट हो जाता है, व्हेन इट अकर्स सडनली, ठीक है, तो एवी कंडक्शन सीज हो गई, यानी कि देयर आर नो मोर इंपल्सेस, एज आई हैव रिपीटेड सो मेनी टाइम्स, देयर आर नो मोर इंपल्सेस बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल, ठीक है? तो क्या होगा? वेंट्रिकल्स दे नीड टू स्टार्ट देयर ओन रिदम, क्योंकि अगर इंसान ने बचना है, इफ द पर्सन इज गोइंग टू सर्वाइव, द वेंट्रिकल्स शुड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वेंट्रिकल्स ने ही ब्लड को आगे फेंकना है पूरी बॉडी में। लेफ्ट वेंट्रिकल ने फेंकना है पूरी बॉडी में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और राइट वेंट्रिकल ने फेंकना है लंग में, ठीक है? लेफ्ट वेंट्रिकल ने पूरी बॉडी में अपार्ट फ्रॉम लंग, और राइट वेंट्रिकल ने सिर्फ लंग में फेंकना। तो दोनों नेसेसरी हैं। अगर ये नहीं होगा तो इंसान कुछ देर में पहले फेंट होगा, फिर मर जाएगा। द पर्सन विल गो अनकॉन्शियस एंड देन अल्टीमेटली विद इन अ फ्यू मिनट्स दैट पर्सन विल डाई। तो उसका क्या होगा फिर? व्हाट विल हैपन? So what happens that when this conduction from the atria to the ventricle stops, okay, but the ventricles do not start their own rhythms right away. They usually take 5 to 30 seconds. They usually take 5 to 30 seconds to start their rhythm. ये phenomenon जो है, this phenomenon is called overdrive suppression. Ideally तो उसको फौरन स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन वो फौरन स्टार्ट नहीं करते वेंट्रिकल्स। उसकी रीजन क्या है? इट्स अ फिनोमेनन कॉल्ड ओवरड्राइव सप्रेशन। ओवरड्राइव सप्रेशन को मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं पहले, और फिर मैं आपको यहां से एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं आपको एक कॉमन जो हमारे इर्द गिर्द एग्जांपल्स हैं उसमें से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। वो ये है कि एक स्लेव है, ठीक है, उसको बंद रखा जाता है, ठीक है, उसको निकाला जाता है एक स्पेसिफिक टाइम पे, उससे काम करवाया जाता है, उसको वापस एक जगह पे बंद कर दिया जाता है, ठीक है? नाउ ये प्रोसेस उसके साथ कई सालों से चल रहा है। नाउ इफ दैट स्लेव इज गिवन एन ओपन डोर without his knowledge, if that slave is given an open door, अगर उसको बताए बगैर उसका दरवाजा खोल दिया जाए तो उसको शायद थोड़ी देर पता नहीं चलता कि मेरा दरवाजा खुला है। वो ह्यूमन बीइंग है, चलो वो सोच सकता है, शायद उसे जल्दी पता लग जाए। मैं एक एनालॉजी बता रहा हूँ आपको, ठीक है? सेम गोज विद दिस ओवरड्राइव सप्रेशन। हो क्या रहा था? इससे पहले कि कंप्लीट एवी ब्लॉक लगा, इंप्लीमेंट हुआ, इससे पहले क्या हो रहा था? व्हाट वाज हैपनिंग? द अकरेंस वाज कि ऐसे नोड से कि इंपल्स आती थी जो कि बाकी सारे हार्ट को गवर्न करती थी। उसने बाकी सारे हार्ट को स्लेव बनाया हुआ था। वो किसी भी और पार्ट ऑफ द हार्ट से कोई भी इंपल्स जनरेट होने से पहले ऐसे नोड की इंपल्स वहां पहुंच जाती थी, और उसको वो जो इंपल्स वहां से जनरेट हो सकती थी अदर पार्ट्स ऑफ द हार्ट से, उसको वो सप्रेस कर देती थी।
ठीक है, नाउ दिस वाज हैपनिंग फॉर मैनी मैनी इयर्स। ठीक, नाउ अब एकदम वो इम्पल्स जो एसए नोड से आ रही थी वो ब्लॉक हो गई। अब वेंट्रिकल्स को कुछ देर इस बात का इल्म ही नहीं होता, ठीक है, दे 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 डू नॉट रियलाइज दैट दे हैव बीन फ्रीड फ्रॉम दैट स्लेवरी। वो इसलिए कुछ देर वो करते ही नहीं है, बीट ही नहीं करते। एंड आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स, दैट इज बिटवीन 5 to 30 seconds, they do realize कि यार probably nobody is governing us, nobody is regulating us anymore, ठीक है। तो वो फौरन फिर कहते हैं कि अच्छा ओके, लेट्स स्टार्ट आवर ओन रिदम। हम अगर हमारे पे कोई इस वक्त चेक नहीं है, हमारे पे कोई ऊपर हमारे पे सुपरमेसी नहीं है, वी आर नॉट स्लेव्स टू एनीबॉडी, तो लेट्स स्टार्ट आवर ओन रिदम, हम अपनी मर्जी करते हैं, ठीक है। सो देन दे स्टार्ट बीटिंग। सो ventricular excitability is at first in a suppressed state, ठीक है। ओवरड्राइव एक्सप्रेशन है क्या, यही जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। तो वेंट्रिकुलर एक्साइटेबिलिटी जो है, जो उसका अपना रिदम हो सकता था, उसको एसए नोडल रिदम ने बड़ी देर से सप्रेस किया हुआ था, ठीक है। लेकिन जब वो बंद हो गया, क्यों क्यों सप्रेस किया हुआ था? कि उसका जो एसए नोड का रेट था वो ग्रेटर था एज कंपेयर टू द नेचुरल रिदम ऑफ वेंट्रिकल्स। इसलिए वेंट्रिकल्स या एवी नोड कभी अपना रिदम शो नहीं कर सके थे, वो कर सकते थे बट दे कुड नॉट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 5 to 30 seconds का पीरियड हमने कहा कि गुजर जाता है, ये जो लिखा हो, ठीक है, बिफोर द वेंट्रिकल्स स्टार्ट देयर ओन रिदम, इसमें क्या होता है? कोई हार्ट बीट नहीं कर रहा होता, ठीक है, जिसकी वजह से बीपी कम होता है। जब बीपी कम होता है तो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? ब्लड फ्लो टू ब्रेन कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ ब्रेन कैन नॉट रिमेन एक्टिव फॉर मोर देन 4 to 7 seconds इफ इट इज नॉट गेटिंग द ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वो इससे ज्यादा एक्टिव रह नहीं सकता, ठीक। तो पर्सन यूजुअली गोज अनकॉन्शियस। अगर ये ज्यादा स्वेयर हो, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगा, ज्यादा स्वेयर हो तो कन्वर्जन्स भी हो सकती हैं। अगर यही स्टेट प्रोलॉन्ग कर जाए, ठीक है, तो पहले अनकॉन्शियसनेस होगी, फिर मेंटल डेथ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक, फिर मेंटल नेक्रोसिस स्टार्ट होगा और फिर मेंटल डेथ स्टार्ट हो जाएगी, और एंड द पर्सन कैन इवेंचुअली डाई। But that is a very, very ultimate sort of a consequence that we are talking about. तो यूजुअली क्या होता है कि एक और फिनोमेनन आता है, एक अभी हमने क्या पढ़ा, ओवरड्राइव सप्रेशन। अब एक इस ओवरड्राइव सप्रेशन से निकालने के लिए एक और फिनोमेनन आता है जिसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर एस्केप। तो वेंट्रिकुलर एस्केप क्या है? यही कि जब ओवरड्राइव सप्रेशन वेंट्रिकल्स को फील होता है कि हमारे पे अब कोई सप्रेशन नहीं है and we can start their own rhythm, and that might take 5 to 30 seconds or even more, ठीक है। तो वो अपना रिदम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग ऑफ रिदम है, वेंट्रिकुलर रिदम, दिस इज वेंट्रिकुलर एस्केप, यानी कि वेंट्रिकल्स जो हैं वो अब ओवरड्राइव सप्रेशन से एस्केप कर गए, ठीक है। नाउ दे हैव एस्केप, और उन्होंने अपना एक रिदम समवेयर बिटवीन 15 to 40 या 20 to 40 स्टार्ट कर लिया, ठीक है। नाउ दिस रिदम, ये जो रिदम स्टार्ट हुआ है, ये एट रेस्ट तो इंसान, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, एंड वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, व्हाई, बिकॉज इट्स अ लाइफ सेवर। इसने उस बंदे की जिंदगी बचा ली है, ठीक है। नाउ इफ इट्स अ लाइफ सेवर, तो अब इस पे हम बहुत ज्यादा बैंक नहीं कर सकते। इट हैज बॉट अस सम टाइम, इसने हमें कुछ टाइम बाय कर दिया है कि हम जो असल कॉज है उसको रिमूव कर सके या उसको हम रेक्टिफाई कर सके, ठीक है। जो असल प्रॉब्लम है, जो ब्लॉक है, उसको हमने रेक्टिफाई कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए इसने हमें कुछ टाइम बाय कर दिया है कि यार हम किसी प्रॉपर क्लिनिक में पहुंचे, किसी प्रॉपर कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में पहुंचे और इसका कुछ करें, ठीक है। क्योंकि हमें कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, हमें ये तो फील हो गया कि हमें प्रॉब्लम आई है, हम फेंट हुए, क्यों हुए, हमें हॉस्पिटल चले, कार्डिक, हमें ये नहीं पता चला कि हमें कार्डिक प्रॉब्लम थी, चले हमें ये तो पता चला कि यार आई समबडी गॉट अनकॉन्शियस, सो दैट पर्सन शुड बी रश टू द हॉस्पिटल। तो जब वो हॉस्पिटल जाएगा, वो फौरन उसकी ईसीजी करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी कि यार इसका तो रेट ही बड़ा कम आ रहा है, ठीक है, और इसकी जो है वो ब्लॉक, और जो है इसका वो ईसीजी में ब्लॉक भी नजर आ जाएगा, ठीक है। तो हम उसको इस वेंट्रिकुलर एस्केप की वजह से जो उसकी लाइफ बच गई है, तो हम उस बंदे को फर्दर उसमें रेक्टिफिकेशन
कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन एमेलियोरेट हिज सिचुएशन, उसकी इस्लाह कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये, तो इसका मतलब है कि हम एट रेस्ट कुछ देर के लिए रिलाय कर सकते हैं इस वेंट्रिकुलर एस्केप पे, लेकिन इसको हम फॉर एवर रिप्लाई इस पे हम नहीं कर सकते, रिलाय नहीं कर सकते, और ना ही हम इसके साथ कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं या कोई इवन मॉडरेट एक्टिविटी भी कर सकते हैं, ठीक है। वो हम इसके साथ नहीं कर सकते। यानी कि हम एक एट रेस्ट तो हम शायद एक नॉर्मल लाइफ कुछ अर्सा गुजार सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम ज्यादा अरसा इस पे नहीं चल सकते, ठीक। तो ये जो पीरियोडिक फेंटिंग स्पेल्स हैं कि जब भी हार्ट ब्लॉक इंप्लीमेंट होगा इंसान फेंट हो जाएगा, दीज आर नोन एज स्टोक्स एडम सिंड्रोम। स्टोक्स एडम सिंड्रोम है, स्ट्रोक एडम सिंड्रोम नहीं। जैसे मैंने आपको वहां बताया था ना कि बेन ब्रिज रिफ्लेक्स है, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स नहीं है, इसी तरह यहाँ पे स्टोक्स एडम सिंड्रोम है। जो थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलते हैं या देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको पता है कि बेन स्टोक्स ये नाम है ना, एक का नाम स्टोक होगा, एक का नाम एडम होगा, तो इट इज स्टोक्स एडम सिंड्रोम जिन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया होगा पहली दफा, ठीक है। तो दिस, ये जो पीरियोडिक फेंटिंग स्पेल्स हैं, दीज आर नोन एज स्टोक्स एडम सिंड्रोम, ठीक है। तो जब भी आपसे स्टोक्स एडम सिंड्रोम पूछा जाए, आपने 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक बताना है कि जी उसमें होता है, फिर आपने बताना है कि ओवरड्राइव सप्रेशन की वजह से जो वेंट्रिकुलर एस्केप है वो थोड़ा सा लेट आता है, ठीक है। और जब वेंट्रिकुलर एस्केप आ जाता है तो फिर हम सिर्फ रेस्ट में उस पर रिलाई कर सकते हैं थोड़ी देर, नॉट फॉर एवर, ठीक है, और एंड नॉट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है, वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टोक्स एडम सिंड्रोम एंड इट इज रिलेटेड टू, इसीलिए मैंने 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक को थोड़ा सा दोबारा समराइज किया था कि इट इज रिलेटेड टू 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट इसका वही है जो 2nd डिग्री हार्ट ब्लॉक मॉर्बिड्स टाइप 2 का है। इट हैज गॉट द सेम ट्रीटमेंट एज फॉर द 2nd डिग्री हार्ट ब्लॉक मॉर्बिड्स टाइप 2, क्योंकि उसमें हमने क्या देखा था कि उसमें 2 या 3 पी वेव्स आती थी और फिर एक QRS कॉम्प्लेक्स आता था, ठीक है। और उसमें एप्रीहेंशन क्या थी हमारी, हमारा फियर क्या था उसमें कि इट कैन लीड टू आइदर अ कंप्लीट हार्ट ब्लॉक और आइदर टू सम मोर डेंजरस एरिथमियाज। तो इसलिए उसमें भी हमने कहा था कि हम पेसमेकर लगाएंगे, और इसमें भी हम कह रहे हैं कि हम इसमें एक पेसमेकर लगाएंगे, ठीक है। एक आर्टिफिशियल बैटरी ऑपरेटेड पेसमेकर होता है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस प्रोड्यूस करता है। इसको हम बीनीथ द चेस्ट वॉल नियर स्किन में लगाते हैं, नियर द कॉलर बोन, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो यूजुअली हम कनेक्ट करते हैं टू राइट वेंट्रिकल थ्रू सबक्लेवियन वेन। सबक्लेवियन वेन के थ्रू जाके, जो कि चेस्ट की वेन है, उसके थ्रू जाके हम राइट वेंट्रिकल के साथ इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं। और ये हर वक्त इम्पल्सेस जनरेट नहीं करता, ये इम्पल्सेस उस वक्त जनरेट करता है जब नेचुरल रिदम फॉल्टर करता है, जब नेचुरल रिदम फेल हो जाता है, तो तब ये टेक ओवर कर लेता है फौरन, ठीक है। इट इज प्रोग्राम्ड लाइक दिस कि ये हर वक्त अपनी अपनी इम्पल्सेस नहीं जनरेट करेगा, ये अपनी इम्पल्सेस उस वक्त जनरेट करेगा जब नेचुरल रिदम अपना काम नहीं कर रहा होगा, तो ये उसको टेक ओवर कर ले, ठीक है। लेकिन जाहिर है इसको लगा के रखना पड़ता है ना, उस वक्त तो नहीं लगाया जा सकता, एक दफा रिदम फॉल्टर कर गया तो उस वक्त तो नहीं दोबारा लगा सकते ना, सो इट हैज टू बी देयर। ये एक वहां पे आप समझ लें कि चौकीदार की तरह बैठा होता है, ठीक है। जब जरा प्रॉब्लम होती है तो ये उस प्रॉब्लम को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, ठीक है। ये इसका ट्रीटमेंट होगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं फर्दर कुछ इनकम्प्लीट ब्लॉक्स पे, लेकिन वो थे जो पहले हमने पढ़े, वो थे एवी नोडल ब्लॉक। अब हम एवी नोड से आगे आ गए। एवी नोड से हम अगर आगे थोड़ा सा आगे आते हैं तो हम कहते हैं कि इनकम्प्लीट इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लॉक्स, इनकम्प्लीट इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अब ये जो इनकम्प्लीट इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लॉक्स हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक पहली चीज जिसको हम पढ़ना चाहते हैं, इसका मतलब है कि ब्लॉक जो है वो वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल के अंदर जो इम्पल्स कंडक्शन सिस्टम है, यानी कि परकेंजे फाइबर्स है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ रही, ठीक, उसमें ब्लॉक आ रहा है। तो
एक कंडीशन जिसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेंस, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो ऑल्टरनेट कर रहा है, ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्टरनेटिंग, ठीक। अब ये इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम कि इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन ईसीजी ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड और एक्सिस बिटवीन द बीट्स, यानी कि इन बिटवीन टू बीट्स बाज दफा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में एक जो है वो फर्क, इन बिटवीन टू बीट्स जो है वो एक फर्क एम्पलीट्यूड का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ जाता है, ठीक है, या उसका एक्सिस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेंस, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। वो भी जब हम ईसीजी देखेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरी इसकी डेफिनेशन जो हम कर सकते हैं इसको, इट्स अ ब्रॉड टर्म दैट डिस्क्राइब्स ऑल्टरनेट बीट वेरिएशन, ठीक है, यानी कि ऑल्टरनेट बीट्स में वेरिएशन आती है इन द डायरेक्शन, एम्पलीट्यूड एंड ड्यूरेशन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द ईसीजी, स्पेसिफिकली क्यूआरएस, ठीक है। इसकी रीजन जो हम अभी ऊपर बता रहे थे वो क्या थी कि इंपल्स कंडक्शन इन द पेरिफेरल वेंट्रिकुलर परकिंजे सिस्टम इज ब्लॉक्ड, कि इंपल्स कंडक्शन वेंट्रिकल के अंदर, इसीलिए हम इसको इंट्रा वेंट्रिकुलर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। एक वेंट्रिकल के अंदर इंपल्स कंडक्शन इन द पेरिफेरल वेंट्रिकुलर परकिंजे सिस्टम इज ब्लॉक्ड, ठीक है। और जो ऑल्टरनेंस है ये हमें कैसे दिखाई देती है, ये हमें दिखाई देती है कि पार्शियल, और ये क्यों होती है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम पार्शियल इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लॉक एवरी अदर हार्ट बीट, ठीक है, यानी कि पार्शियल इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लॉक हमें नजर आएगा एवरी अदर हार्ट बीट में, ये इसकी डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज्यादा है पहली में, दूसरी में एम्पलीट्यूड क्यूआरएस का कम है, फिर ज्यादा है फिर कम है, यानी कि ऑल्टरनेट हार्ट बीट्स पे हमें जो एम्पलीट्यूड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो हमें ऑल्टर्ड मिल रहा है, ठीक है, वो चेंज मिल रहा है, इसीलिए हम इसको, यानी कि मतलब क्या हुआ कि जो इम्पल्स है वो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे कम स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे कम स्ट्रॉन्ग है, सो इसीलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेंस, ठीक है, कि हमें जो इलेक्ट्रिकल चेंज है वो ऑल्टरनेट बीट्स में मिल रही है, ओके, ठीक है। सो ये एक, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेंस, ठीक। अच्छा जी, इसके बाद आ गई प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस। प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं ये आपने सुना होगा कि यार वो बंदा जो है ना वो, उसमें ना एक एक्स्ट्रा बीट आती है, ठीक है, वो ड्रॉप बीट वाला जो कहते थे ना कि यार उसकी एक बीट मिस होती है, वो तो आ गया सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है, मॉर्बिड्स टाइप 1 वैंकरबैक फिनोमेनन, ठीक है, वो तो आ गया उसमें। अब अगर मैं कहते हैं कि यार किसी के इसमें ईसीजी में या उसकी ईसीजी में एक बीट एक्स्ट्रा आ रही है, ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस। प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार एक बीट के बाद दूसरी बीट आनी है, ठीक है, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट आफ्टर दिस मच टाइम, आफ्टर से 0.8 seconds, after one heartbeat, the next heartbeat would be there. But what we find is that there is a heartbeat prior to 0.8 seconds. ठीक है, जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड टाइम था हमारा वो 0.8 सेकेंड्स था, कॉन्ट्रैक्शन टाइम, जो अगली बीट का टाइम था, लेकिन हमें से मिल गई 0.5 के बाद या 0.4 के बाद, तो ये तो फिर प्री मैच्योर बीट हो गई। और इसने क्या किया कि इसने एक एक्स्ट्रा सिस्टली प्रोड्यूस कर दी, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको एक्स्ट्रा सिस्टली भी कहते हैं, इसने एक एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कर दी ना, तो इस दैट्स व्हाई वी कॉल इट एक्स्ट्रा सिस्टली, वी कॉल इट प्रीमेच्योर बीट, और इसे हम एक्टोपिक बीट भी कहते हैं। एक्टोपिक बीट हम इसलिए कहते हैं, कभी हम इसको आगे फर्दर पढ़ेंगे, कि इसकी अक्सर रीजन जो है वो यही होती है कि हार्ट में कहीं किसी जगह पे एक एक्टोपिक फोकस, एक स्टिमुलस बन जाता है जो कि अपनी एक बीट जनरेट कर देता है, लेकिन एक बीट जनरेट करता है कभी कभी, ठीक है,
एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट डेंजरस। इसीलिए ये डेंजरस भी नहीं है, ये कभी कभी होती है, ठीक है। जिस तरह हमने कहा था ना कि वो एक मिस्ड बीट डेंजरस नहीं है सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में, बैक के बैक फिनोमेनन में, इसी तरह हम यहाँ भी कह रहे हैं कि एक प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन जो है ना, एक प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन कभी कभी, बहुत ऑफ्टन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कभी कभी हो जाए, ऑफ एंड ऑन हो जाए, तो वो डेंजरस नहीं, ठीक है। लेकिन इसको हम डिफाइन क्या किया हमने कि इसकी रीजन क्या बताई, जनरल रीजन, मैकेनिज्म तो अभी हम देखेंगे। जनरल रीजन क्या है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिफोर इट्स नॉर्मल एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्शन टाइम। हार्ट जो है जो अपने नॉर्मल एक्सपेक्टेड टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। अगर हम इसकी ईसीजी देखें तो चलो ईसीजी पे भी आ जाते हैं, चलो मैं ईसीजी आपको दिखा देता हूँ। ये हो रहा है, ये देखो, फिर मैं इसकी वापस डिटेल में जाऊंगा। ये देखो जी, ये नॉर्मल आ रही है ईसीजी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया, टी वेव आई, पी वेव आई, नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया। अब यहाँ पे टी वेव आनी चाहिए थी, ठीक है। अब और इसके बाद यहाँ पे फिर पी वेव आनी चाहिए थी और फिर ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आना चाहिए। लेकिन यहाँ हुआ क्या है, यहाँ पे एक इस टी वेव के ऊपर ही एक इसके साथ मर्ज या इसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड एक पी वेव एक्स्ट्रा आ गई, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये नीचे लिखा हुआ है, शोज एन एट्रियल प्रीमेच्योर बीट विद इट्स पी वेव सुपर इम्पोज्ड ऑन द टी वेव ऑफ द प्रीसीडिंग बीट। ये प्रीसीडिंग बीट है ना, इसकी प्रीसीडिंग होती है जो पहले होती है, और जो फॉलोइंग होती है वो होती है जो बाद में आती है, ठीक है। तो ये प्रीसीडिंग थी दिस बीट, ठीक है। इसकी टी वेव के ऊपर ये जो प्रीमेच्योर पी वेव है वो आ गई, ठीक है, जिसकी वजह से, अच्छा इसी को यहाँ पे देख लो, यहाँ भी यही हो रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल हार्ट बीट है, ये एक रेगुलर रिदम चल रहा है सारा। प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस कहाँ कहाँ आई हैं, एक यहाँ आई है इस जगह पे, ठीक है, और एक यहाँ आई है, बाकी सब ठीक है, बाकी नॉर्मल है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि अगर ये कभी कभी आए तो ये खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर ये हाई सीजी में आनी शुरू हो जाएगी तो यस, देन इट कैन बी डेंजरस। फिर इसका मतलब है कि इट्स नॉट जस्ट अ वन ऑफ थिंग, इट इज समथिंग व्हिच इज गेनिंग रेगुलरिटी, ठीक है, एंड व्हिच इज बिकमिंग हायर इन फ्रीक्वेंसी, व्हिच इज डेंजरस, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ इसकी डिटेल पे, क्योंकि इसकी डिटेल में कुछ और भी चीजें हैं, और फिर मैं इस डायग्राम पे आऊंगा उन चीजों को आपको दोबारा समझाने के लिए, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन, हमने प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन तो कर लिया कि ये होती क्यों है, इसकी जनरल रीजन क्या हुआ कि एक बीट जो है वो एक्सपेक्टेड कंट्रैक्शन टाइम से पहले ही स्टार्ट हो गई, ठीक। अच्छा, तो इसकी कॉजेज क्या हो सकती है, हमने कहा कि ये यूजुअली एक्टोपिक फोकाई की वजह से होती है। तो ये एक्टोपिक फोकाई कहाँ से आते हैं, ये लोकल एरियाज ऑफ इस्कीमिया है, ठीक है। जहाँ इस्कीमिया होगा वहाँ नेक्रोसिस होगी, वहाँ फाइब्रोसिस हो सकती है। तो वो एरियाज जो हैं वो करंट ऑफ इंजरी डेवलप करेंगे, वहाँ से एक्टोपिक फोकाई आएंगे। करंट ऑफ इंजरी आपने पढ़ी है ना, डॉक्टर शाइना ने आपको पढ़ाई है, ठीक है। तो जो इंजर्ड पार्ट होगा वहाँ से हमेशा करंट एमिट होती रहेगी, ठीक। तो दैट कैन बी डेंजरस, वो प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन कॉज कर सकती है, ठीक है। इसी तरह स्मॉल कैल्सिफाइड प्लैक्स at different points pressing against the adjacent cardiac muscle to irritate them। वो कार्डिक मसल को जो कैल्सिफाइड प्लैक बनता है इंजरी की वजह से, इंजरी के बाद, वो एट डिफरेंट पॉइंट्स जो वो प्रेस कर सकता है कार्डिक मसल को और उसको इरिटेट कर सकता है। उस इरिटेशन की वजह से इंपल्स जनरेट हो सकती है, ठीक है। तीसरी कॉज, टॉक्सिक इरिटेशन ऑफ द एवी नोड। एवी नोड की कोई टॉक्सिसिटी, किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी, यूजुअली किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी की वजह से एवी नोड में इरिटेशन आ गई, ठीक है। एवी नोड में आ गई, परकेंजियस सिस्टम में आ गई, या मायोकार्डियम में आ गई, कॉज बाय ड्रग्स, निकोटीन और कैफीन। जो बहुत ज्यादा कॉफी पीने वाले लोग हैं या बहुत ज्यादा चाय पीने वाले लोग हैं, ठीक है, उनमें भी ये बाज दफा आ जाती है, एक्स्ट्रा सिस्टलीज आ जाती है, प्रीमेच्योर कंट्रैक्शंस आ जाती है, ठीक। बहुत ज्यादा स्मोकिंग से भी आ जाती है, कुछ और भी ड्रग्स हैं जिससे आ जाती है, ठीक है। तो ये तीसरी कॉज हो गई। फिर इसकी एक प्योर मैकेनिकल इरिटेशन है कि जब आप कार्डिक कैथेटराइजेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आप हार्ट में किसी प्रोसीजर के लिए कोई कैथेटर डाल रहे होते हैं, तो अक्सर वो कैथेटर जो है वो राइट वेंट्रिकल की एंडोकार्डियम के अगेंस्ट प्रेस होता है और उसको स्टिमुलेट करता है।
तो उसकी वजह से भी एक्स्ट्रा सिस्टली आ सकती है, क्योंकि वो भी एक इम्पल्स जनरेट कर देगा, ठीक है। सो देयर वुड बी वंस अगेन देयर वुड बी एन एक्स्ट्रा सिस्टली, ठीक है। तो ये 4 कॉजेज हो सकती हैं जिसकी वजह से कि एक प्री मेच्योर बीट जो है वो या प्री मेच्योर कंट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो सकती है। अब अगर तो ये डिस्चार्ज, अगर ये जो एक्टोपिक फोकस है अगर ये सिर्फ एक दफा डिस्चार्ज करे, वही जैसे मैंने कहा कि ऑफ एंड ऑन कभी कभी डिस्चार्ज करे, तो फिर सिर्फ एक बीट होगी बिफोर द एक्सपेक्टेड नेक्स्ट नॉर्मल बीट, ठीक है, जो कि ट्रांजिएंटली सिर्फ एक बीट के लिए कार्डिक रिदम को डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ हो सकती है, ये एट्रिया में भी हो सकती है, ये एवी नोड में भी हो सकती है, और ये वेंट्रिकल्स में भी हो सकती है। यानी कि एट्रियल प्रीमेच्योर बीट भी हो सकती है, एवी नोडल प्रीमेच्योर बीट भी हो सकती है, और वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस जगह से अराइज हो रही है, ठीक है, उसके मुताबिक ये हो सकती है। अच्छा, अब ये तो हो गया कि अगर सिर्फ एक बीट अराइज हो रही है। अगर जो फोकस है उसका डिस्चार्ज रेपिटेटिव हो, ठीक है, वो जो इंजरी फोकस था जहाँ या जो इम्पल्स जनरेट कर रहा था, इफ द डिस्चार्ज फ्रॉम दैट फोकस इज रेपिटेटिव, ठीक है, फॉर सम टाइम एट अ रेट हायर देन दैट ऑफ एसए नोड, तो क्या होगा, इट वुड प्रोड्यूस रैपिड इर्रेगुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। तो फिर वो एक रेगुलर टैकीकार्डिया स्टार्ट कर देगा। वहां पे पिछली एग्जांपल में क्या था, पिछली स्लाइड में एक बीट थी सिर्फ, अब प्रॉपर टैकीकार्डिया स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि रेपिटेटिव डिस्चार्ज आ रहा है इम्पल्स का, और रेपिटेटिव प्रीमेच्योर बीट्स आनी शुरू हो गई, ठीक है। तो इसकी वजह से एक रेगुलर टैकीकार्डिया शुरू हो जाएगा। अगेन ये भी इन्हीं तीनों जगह पे हो सकता है, एट्रिया में हो सकता है, वेंट्रिकल में हो सकता है, और एवी नोड में हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डियाज, और एट्रियल फ्लटर भी हो सकता है, ठीक है। तो पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डियाज प्रोबेबली आज के लेक्चर में कवर नहीं हो सकेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि पैरोक्सिस्म का मतलब क्या है। हमें पैरोक्सिस्म का मतलब पता चल जाए तो हमें टैकीकार्डिया का मतलब तो पता है, फास्ट हार्ट रेट, ठीक है। तो पैरोक्सिस्मल होता है समथिंग व्हिच कम्स ऑन सडनली एंड गोज ऑफ सडनली एज वेल, ठीक। तो जब भी ये प्रीमेच्योर कंट्रैक्शंस एकदम स्टार्ट हो जाएंगी, या सीरीज ऑफ प्रीमेच्योर कंट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाएंगी, तो क्या होगा, हार्ट रेट तेज हो जाएगा, ठीक है, हार्ट रेट तेज हो जाएगा। सो इट विल, तो हमें से, और फिर कुछ देर बाद जब वो खत्म हो जाएगी दैट सीरीज ऑफ प्रीमेच्योर कंट्रैक्शंस, तो ये टैकीकार्डिया भी खत्म हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया, ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं कि प्रीमेच्योर कंट्रैक्शंस जो हैं ये वही हम कितनी टाइप की हो सकती हैं, वो हमने अभी वैसे इसमें कर लिया। प्रीमेच्योर एट्रियल कंट्रैक्शंस भी हो सकती हैं, एवी नोडल और एवी बंडल प्रीमेच्योर कंट्रैक्शंस भी हो सकती हैं, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शंस भी हो सकती हैं। पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डियाज भी इसी तरह, एट्रियल पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डियाज भी हो सकते हैं, वेंट्रिकुलर पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डियाज भी हो सकते हैं। इसी तरह जो और ज्यादा डेंजरस एरिथमियाज हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फ्लटर, एट्रियल फ्लटर एंड कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट तो खैर अरेस्ट है, उसमें तो खैर एकदम हार्ट बीट खत्म हो जाती है और इंसान जो है वो अगर इससे फौरी वापस ना निकले विद इन अ फ्यू सेकंड्स तो द पर्सन डाइज, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी हमने एरिथमियाज का अब तक नाम लिया है, चाहे आप कोई ब्लॉक ले लें, चाहे आप एट्रियल फिब्रिलेशन ले लें, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ले लें, पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डियाज ले लें, प्रीमेच्योर बीट्स ले लें, आप जो मर्जी ले लें, इन सबसे ज्यादा खतरनाक एक एरिथमिया है और उसका नाम है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को कहा जाता है कि इट्स ऑलमोस्ट एवरी केस इट इज द अदर नेम ऑफ डेथ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद वंस द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन सेट्स इन, ये आज हमने नहीं पढ़नी लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ कि वंस द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन सेट्स इन, तो उसके बाद हमें बंदे को बचाने के लिए चंद सेकंड होते हैं, उसके बाद चंद सेकंड्स की गेम रह जाती है, ठीक है। या तो ये जो एरिथमिया ये खुद ब खुद रिवर्स हो जाए किसी वजह से, तो दैट इज समथिंग एल्स, उसको हम कुछ नहीं कह सकते। अदरवाइज अगर इसको डॉक्टर ने रिवर्स करना है या किसी क्लिनिशियन ने रिवर्स करना है,
तो उसके लिए उसके पास चंद सेकंड्स हैं, ठीक है। इसलिए दिस इज द डेडलीस्ट मोस्ट फेटल कार्डियक एरिथमिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। चलो बस इसके बारे में अभी इतने बताएंगे हम, बाकी इसकी बातें बाद में करेंगे। अच्छा जी, तो अब हमने बात कर ली सारी की ये प्री मेच्योर कंट्रैक्शन जो हैं ये कहाँ कहाँ हो सकती हैं। अब हम इनको वन बाय वन अगर लें और देखें कि ईसीजी में क्या होता है, तो फिर वो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्री मेच्योर एट्रियल कंट्रैक्शन में क्या होता है। ऑफ कोर्स P wave of a beat occurs too soon in the heart cardiac cycle, ठीक है। जहां पे उसको स्टूडेंट जिस एक्सपेक्टेड टाइम पे P wave आनी चाहिए थी उससे पहले आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से PR इंटरवल शॉर्टन हो जाता है, ठीक। नाउ द इंटरवल बिटवीन द प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन and the next succeeding contraction is slightly prolonged, ठीक, which is a compensatory pause। ये वो चीज है जो मैं अब आपको दिखाना चाह रहा था कि मुझे आपको दोबारा ये दिखाना पड़ेगा। क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, इसको दोबारा हम पढ़ते हैं, ठीक है। द इंटरवल बिटवीन द प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, अब आपने देखना है कि कहाँ, अब जब डायग्राम पे जाएंगे तो आपने पहली चीज ये देखनी है कि प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन कहाँ थी, ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन आ रही है वो कब आ रही है। तो इस दौरान जो चीज आती है उसको हम कहते हैं कॉम्पनसेटरी पॉज। वो अब देखते हैं कि यहाँ कहाँ है, ठीक है। ये देखो, ये एक प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन आई, ठीक है। इसके बाद ये एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया। अब ये देखें कि जो नेक्स्ट जो पी वेव के बाद जो क्यूआर जो है वो ये देखें कि एक ये एक्स्ट्रा सिस्टली जब आई तो उसके बाद यहाँ पे देखें कितनी लंबी पॉज है इस पी वेव और इस पी वेव के दरमियान में, इस टी वेव और इस पी वेव के दरमियान में कितनी लंबी पॉज है। पीछे आपको इतनी लंबी पॉज, ये टी वेव है, ये पी वेव है, ठीक है, आपको नजर नहीं आ रही। यहाँ पे देखें ये टी वेव के बाद कितनी लंबी पॉज है जिसके बाद पी वेव आई, तो इसको हम कहते हैं कॉम्पनसेटरी पॉज। ये किसकी कॉम्पनसेशन कर रही है, यहाँ जो अर्ली बीट आ गई थी, जो प्री मेच्योर बीट आ गई थी, पी वेव अर्ली आ गई थी, ये उसको कॉम्पनसेट कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं पी वेव, इसको हम कहते हैं कॉम्पनसेटरी पॉज। ये एक और डायग्राम है वो। अच्छा, इसी तरह जब अब हम आगे पढ़ेंगे वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट, तो वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट में भी कॉम्पनसेटरी पॉज आती है और वो एट्रियल कॉम्पनसेटरी पॉज से ज्यादा लंबी होती है, ठीक। तो एट्रियल हो या वेंट्रिकल कॉम्पनसेटरी पॉज हो, वो क्यों आती है, क्योंकि वो जो प्रीमेच्योर बीट एक आई थी, क्योंकि वो अर्ली आ गई थी, तो उसके नेक्स्ट साइकिल को शुरू करने से पहले वो एक कॉम्पनसेटरी पॉज देता है, ठीक है। ईसीजी में कॉम्पनसेटरी पॉज हमें नजर आता है, ठीक। अच्छा, अब हम और इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसका मैकेनिज्म एक ये दिया हुआ कि जो स्टिमुलस था, जो प्रीमेच्योर बीट थी, ये कहाँ स्टार्ट हुई, इट ओरिजिनेटेड इन द एट्रियम सम डिस्टेंस फ्रॉम द साइनस नोड, ठीक है। नाउ अब क्योंकि ये एट्रियल मसल में डेवलप हुई है, ठीक, ये जो प्रीमेच्योर बीट थी, रेगुलर बीट कहाँ से आ रही थी, एसए नोड से। ये जो प्रीमेच्योर बीट है ये कहाँ ओरिजिनेट हुई है, एट्रियल मसल में, और वो कहाँ होगा, इट मस्ट बी एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द साइनस नोड, ठीक है। नाउ अब इम्पल्स को क्या करना पड़ेगा, इम्पल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू अ considerable distance, a considerable amount of atrial muscle before it discharged the sinus node। अब ये जो इम्पल्स यहाँ से जनरेट हुई है, ये क्या करेगी, ये जाके साइनस नोड को दोबारा से डिस्चार्ज करेगी या उसको दोबारा से स्टिमुलेट करेगी, ठीक है। नाउ क्योंकि ये जो इम्पल्स थी इसका ट्रेवल हुआ थ्रू द कार्डियक, थ्रू द एट्रियल मसल, जहां पे कि कंडक्शन स्लो थी, ठीक है। सो इट टुक अ लॉन्गर टाइम, ठीक, एंड द साइनस नोड डिस्चार्ज लेट इन द प्रीमेच्योर साइकिल। तो साइनस नोड का जो डिस्चार्ज हुआ वो लेट हुआ। इसकी वजह से जब कंपनसेटरी पॉज आएगी तो द सक्सीडिंग साइनस नोड डिस्चार्ज वुड आल्सो बी लेट इन अपीयरिंग। इसको हम कहते हैं एसए नोडल रीसेटिंग। देखो ना, एसए नोड को जो प्रीमेच्योर बीट थी उसने डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है, उसको उसने स्टिमुलेट कर दिया।
अब जो एसए नोड है वो किसमें है, वो अपने रिफ्रैक्टरी पीरियड में। जब तक उसका एक्शन पोटेंशियल ओवर नहीं होगा तब तक वो नई इंपल्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। इस तो ये जो टाइम है इसको हम कहते हैं कि ये टाइम लिया जा रहा है फॉर एसए नोडल रीसेटिंग। एसए नोड अपने आप को रीसेट करेगा टू मेक इट सेल्फ अवेलेबल फॉर स्टिमुलेशन बाय अनदर इंपल्स, अनदर स्टिमुलस, ठीक है। तो ये रीसेटिंग का जो टाइम लेता है, इसकी वजह से ये जो कॉम्पेंसेटरी पॉज है ये आती है, ठीक। तो एक तो इसका मैकेनिज्म ये हो। प्रीमेच्योर बीट जो है ये हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी आ सकती है, और स्पेसिफिकली एथलीट्स में हु हैज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ट, ठीक है, ये उनमें आ सकती है। लेकिन ये प्रीमेच्योर बीट, फिर वही बात कि ये प्रीमेच्योर बीट वो है जो कि ऑफ एंड ऑन आती है, विच इज नॉट डेंजरस, ठीक। ये एथलीट्स में भी आ सकती है, ठीक। अच्छा, और किस कंडीशन में आ सकती है, माइल्ड टॉक्सिक कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम स्मोकिंग, लैक ऑफ स्लीप, टू मच कॉफी, जैसे हमने कहा, अल्कोहलिज्म से आ सकती है, और वेरियस ड्रग्स के यूज से आ सकती है, जैसे हमने पहले ये चीजें डिस्कस कर ली, ठीक है। तो जो प्री मेच्योर बीट है ये नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में भी आ सकती है, स्पेसिफिकली हेल्दी वेरी स्ट्रॉन्ग एथलीट्स में आ सकती है, जो बड़े हैवी, जो बड़े स्ट्रेनस एथलीट्स हैं उनमें आ सकती है, ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग हार्ट, ठीक है, उनमें भी आ सकती है। और माइल्ड टॉक्सिक कंडीशंस रिजल्टिंग फ्रॉम स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग, लैक ऑफ स्लीप, टू मच कॉफी, अल्कोहलिज्म एंड यूज ऑफ सम ड्रग्स, उनसे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रीमेच्योर बीट, ये था एट्रियल प्रीमेच्योर बीट, और ये इसकी डायग्राम्स थी जो हमने देखी। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट है फिजियोलॉजी में जिसे हम कहते हैं, पैथोलॉजी खैर मेडिसिन में भी है, जिसे हम कहते हैं पल्स डेफिसिट। इसमें क्या होता है कि हार्ट जब अर्ली कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि प्रीमेच्योर बीट आती है, ठीक है, जब हार्ट अर्ली कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रीमेच्योर बीट आती है, तो वेंट्रिकल्स जो है वो पूरी तरह से फुल नहीं हुए होते अभी, और वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, वो अभी तरह से पूरी तरह से, ये पल्सेस डेफिसिट जो है इट इज प्रीमेच्योर बीट ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है, ये एट्रिया नहीं है, यहाँ हम वेंट्रिकल्स की बात कर रहे हैं कि हार्ट जो है वो अर्ली कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ड्यू टू अ प्रीमेच्योर बीट, ठीक है। अब हार्ट जो का मतलब है वेंट्रिकल्स को फिल होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, और अगर उस टाइम के पूरा होने से पहले वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो इसका मतलब है कि द वेंट्रिकल्स वर नॉट फुली फिल्ड, और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कम आएगा। Now the stroke volume is the blood which is pumped out of the ventricles with each heartbeat. तो इसका मतलब है अगर वेंट्रिकल्स फुली नहीं थे, if they were not completely filled, so that means कि they will give out some low stroke volume, ठीक। जिसकी वजह से अब आप ये आगे जो ये पल्स वेव रीचिंग का जो आगे वर्ड आ रहा है, पल्स वेव का जो वर्ड आ रहा है, ये आपको ज्यादा क्लियर होगा जाके सर्कुलेशन, क्योंकि जो पल्स हम रेडियल पल्स जो हम फील करते हैं, ठीक है, जो हम पल्स हम काउंट करते हैं, ये एक्चुअल ब्लड फ्लो नहीं होता, ये एक पल्स वेव होती है जो कि ब्लड फ्लो की वजह से प्रोड्यूस होती है। अब ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको यहाँ नहीं समझा सकता, मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ, व्हेन वी विल स्टडी द पल्स प्रेशर वेव इन सर्कुलेशन, तो ये हम वहाँ डिस्कस करें, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस लो स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से ये जो पल्स प्रेशर वेव है, ये भी जो रेडियल आर्टरी तक पहुंचती है वो बड़ी वीक होती है या एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से अगर हम हार्ट रेट काउंट करें स्टेथोस्कोप रख के, तो वो शायद हमें 70 मिलेगा, एक बात कर रहा हूँ, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जस्ट अ सपोज्ड फिगर, तो वो शायद हमें 70 मिलेगा। लेकिन अगर हम रेडियल पल्स भी साथ ले रहे हैं तो वो शायद हमें 60 मिले, वो शायद हमें 55 मिले, 58 मिले। तो इसको हम कहते हैं पल्स डेफिसिट, कि हार्ट रेट ज्यादा है पल्स कम है, ठीक है, हार्ट रेट ज्यादा है पल्स कम है। ओके, ठीक। तो इसको हम कहते हैं, इसको हम पल्स डेफिसिट भी कहते हैं, इसको हम पल्सेस डेफिसिट भी कहते हैं, ठीक है। ये जब हम टाइप्स ऑफ पल्सेस पढ़ेंगे ना सर्कुलेशन में और प्रैक्टिकल में, रेडियल पल्स वाले प्रैक्टिकल में, तो वहां इसकी आपको ज्यादा बेहतर, खैर अभी मैंने आपको ये समझा दिया कि होता यह है कि
ड्यू टू लो स्ट्रोक वॉल्यूम पल्स प्रेशर वेव जो है वो लो रहती है, या तो वो इस पे रेडियल पल्स जहां हम फील करते हैं रिस्ट पे, तो या तो वहां वो बहुत वीक होती है या वो एब्सेंट होती है। तो इस वजह से जो एक्चुअल हार्ट रेट हम स्टेथोस्कोप से पिक कर सकते हैं उसमें और रेडियल पल्स में डिफरेंट होता है। रेडियल पल्स कम होती है और जो हार्ट रेट है वो ज्यादा होता है। ठीक, अच्छा चले अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। वो हमने क्या पढ़ा था पीछे, एट्रियल एक्स्ट्रासिस्टली या एट्रियल प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन। अब आ गई एवी नोडल एक्स्ट्रासिस्टली कि अगर एवी नोड में कोई ऐसा एक्टोपिक एक स्टिमुलस बन जाए जो कि इंपल्स जनरेट कर सके, तो फिर क्या होगा। सो एक्टोपिक इंपल्स इज प्रोड्यूस्ड इन द एवी नोड, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट बिफोर टाइम। क्यों क्यों करेंगे बिफोर टाइम, क्योंकि वैसे इंपल्स ने कहां से आना था, एसए नोड से आना था, एट्रिया से गुजर के आना था, एवी नोड से गुजर के आना। ठीक है, अब इंपल्स ही एवी नोड से जनरेट हो गई, तो वो पिछला सारा जो टाइम था वो बच गया। ठीक है, पिछला सारा टाइम बच गया। अब वो पिछला टाइम सारा बच गया तो इसका मतलब है जो इंपल्स है वो एवी नोड से डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगी वेंट्रिकल्स में। ठीक, तो इसलिए वेंट्रिकल्स जल्दी फौरन जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। ठीक, नाउ इन ईसीजी QRS कॉम्प्लेक्स इज रिकॉर्डेड बिफोर टाइम। ऑफ कोर्स अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जल्दी कर रहा है तो ईसीजी में उसका रिकॉर्ड भी जल्दी आएगा। P wave is superimposed on QRST complex. P wave जो है वो सुपरइम्पोज हो रही है किस पे, QRST कॉम्प्लेक्स पे, एंड द कॉम्प्लेक्स इज डिस्टॉर्टेड। QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है। P wave इटसेल्फ हमें नजर नहीं आएगी। ठीक है, इसकी रीजन क्या है कि ये क्यों उसके ऊपर सुपरइम्पोज हो गई है QRS पे। हालांकि वेंट्रिकल्स ने भी अर्ली किया था, वेंट्रिकल्स ने भी अर्ली शो किया था अपना रिकॉर्ड, लेकिन पी वेव का रिकॉर्ड अर्ली क्यों आ गया, इसलिए आ गया कि जब इंपल्स जनरेट हुई एवी नोड में तो एक तरफ तो वो वेंट्रिकल्स में गई, दूसरी तरफ वो एट्रिया में चली गई। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है और पी वेव वो साइमल्टेनियसली जनरेट हो गए। ठीक है, और जो पी वेव है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के ऊपर सुपर इम्पोज नजर नहीं आ रही, लेकिन उसने उसको उसके ऊपर उसकी सुपर इम्पोजिशन है पी वेव की, और उसने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को डिस्टॉर्ट कर दिया। ठीक, तो इसकी रीजन क्या हुई कि क्योंकि जो एक्टोपिक फोकस था वो एवी नोड में था, वहां से एक इंपल्स जनरेट हुई जिसने वेंट्रिकल्स को भी स्टिमुलेट किया और एट द सेम टाइम उसने एट्रिया को भी स्टिमुलेट किया। जब वेंट्रिकल्स को उसने स्टिमुलेट किया तो उसने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को रिकॉर्ड दिखाया, उसका रिकॉर्ड दिखाया। जब उसने एट्रिया को स्टिमुलेट किया तो उसने पी वेव का रिकॉर्ड दिखाया। Now these both records they are merged, ये एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो गए, और पी वेव जो है वो सुपर इम्पोज्ड है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे, और उसने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को डिस्टॉर्ट कर दिया। अब वो आप यहाँ देखें, यहाँ देखेंगे आपको कि वो आपको नजर कैसी आती है। ये देखिए, ये नॉर्मल पीछे से चलता रहा है, पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टी वेव, पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टी वेव, फिर ये भी नॉर्मल चल रहा है, पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टी वेव। फिर अब इसके बाद यहाँ क्या हुआ है, यहाँ देखो, यहाँ पे एक प्रीमेच्योर बीट आ गई, यहाँ पे एक प्रीमेच्योर आ गई है, एवी नोडल प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन आ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो अगला जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स था उसके ऊपर पी वेव जो है वो सुपर इम्पोज्ड है। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस बड़े थे, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डिस्टॉर्ट हो गया, छोटा सा रह गया। क्यों, क्योंकि उसको पी वेव जो है वो सुपर इम्पोज कर दी। ठीक है, आगे देखो फिर भी नॉर्मल स्टार्ट हो गया, आगे फिर सब कुछ नॉर्मल स्टार्ट हो गया। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ एवी नोडल प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन, चाहे वो कंट्रैक्शन एट्रिया में हो प्रीमेच्योर, चाहे वो एवी नोड में हो, चाहे वो वेंट्रिकल में हो, अगर तो वो वन ऑफ है, ठीक है, ऑफ एंड ऑन है, तो वो डेंजरस नहीं है, लेकिन अगर वो रिपीटेड होगी तो डेंजरस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। कि जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस हैं इनमें प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमें कैसे नजर आती है और उसके क्या जो है वो पैटर्न्स हैं, वो हमें ईसीजी पे क्या पैटर्न्स दिखाते हैं।
ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि वेंट्रिकल में एन एक्टोपिक इंपल्स अराइजेस विद इन वेंट्रिकल्स, ठीक है, तो which depolarizes ventricles before time. So the ventricles contract before time. ठीक है, ये बात तो पक्की हो गई। अब ईसीजी में क्या आएगा? ईसीजी में इसमें तीन मेजर चीजें आती हैं और वो हमें सिर्फ वो तीन मेजर चीजों का नहीं पता होना चाहिए, आगे मैं उनकी रीजंस भी डिस्कस करूंगा कि ये तीनों मेजर चीजें जब वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन आती है तो ये तीन चीजें हमें क्यों नजर आती हैं ईसीजी में। द वन इज दैट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अकर्स बिफोर टाइम and is of high voltage, एक बात। दूसरा, it is also slurred, deformed and widened, ठीक है। तीसरा, there may be negative T wave, altered repolarization। T wave क्या है? T wave is ventricular repolarization wave, ठीक है। तो T wave की पोलैरिटी ही चेंज हो जाती है। वैसे ये अमूमन नॉर्मल ईसीजी में ये पॉजिटिव वेव है, जो एट्रियल रिपोलराइजेशन वेव है, टी वेव जो है, ये एक नॉर्मल ईसीजी में ये एक पॉजिटिव वेव है। लेकिन अगर ये इस वेव को हम देखेंगे वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन वाली सिचुएशन में, तो इट विल रिप्रेजेंट इटसेल्फ एज अ नेगेटिव वेव, ठीक है। अब देखें, इसकी हम देखते हैं कि होता क्या है, और इसमें जो कॉम्पनसेटरी पॉज है वो लॉन्गर क्यों आती है और इसमें ईसीजी का पैटर्न क्या है। आफ्टर एक्स्ट्रा सिस्टली देयर इज कॉम्पनसेटरी पॉज, ठीक है। और जैसे मैंने तब बताया था कि इट्स दिस पॉज इज लॉन्गर देन द पॉज आफ्टर एन एट्रियल एक्स्ट्रा सिस्टली। तो वेंट्रिकुलर सिस्टली में जो कॉम्पनसेटरी पॉज है, इट इज लॉन्गर एज कंपेयर टू द पॉज इन द एट्रियल प्रीमेच्योर सिस्टली, ठीक है, ये उसमें ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से होता यह है कि द इंटरवल बिटवीन द प्रीवियस बीट एंड द एक्स्ट्रा सिस्टली, एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर सिस्टली इज शॉर्टेंड। जैसे ये देखो, हमने क्या स्टेटमेंट पढ़ी है? इंटरवल बिटवीन द प्रीवियस बीट, यानी कि जो प्रीवियस नॉर्मल बीट थी और जो एक्स्ट्रा प्रीमेच्योर बीट वेंट्रिकल की आई है, उसमें इंटरवल शॉर्टेंड हो जाता है। ये देखो इस डायग्राम में ये है उसकी ईसीजी। ये जो छोटे आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस नजर आ रहे हैं, ये नॉर्मल बीट है, ठीक है, ये वाले। और ये जो आपको बड़े क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस नजर आ रहे हैं, ये प्रीमेच्योर बीट के, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है कि डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्मल प्रीसीडिंग नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स and the extra systole or the ventricular extra premature beat or the ventricular premature beat is less as compared to the distance between these two, that is between the extra premature beat and the next normal QRS complex. ये QRS complex premature beat से पहले था ये वाला, और ये premature beat के बाद है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि द डिस्टेंस बिटवीन द प्रीवियस नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड द प्रीमेच्योर बीट इज लेस एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्रीमेच्योर बीट एंड द नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इसके बाद जो है प्रीमेच्योर बीट के बाद जो है वो कॉम्पनसेटरी पॉज आएगी और दैट वुड बी लॉन्गर as compared to the atrial premature beat, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने तीन बातें की हैं, अभी हमने कहा था कि जी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड होता है, ठीक, हाई वोल्टेज का होता है, और तीसरी चीज हमने कही थी कि नेगेटिव टी वेव पोटेंशियल होता है। ये क्यों होता है? इसकी रीजंस क्या है? QRS complex is widened because ectopic impulse is conducted through ventricular muscle. Slow velocity of conduction. जितना ज्यादा टाइम लगेगा कंडक्शन में थ्रू वेंट्रिकुलर मसल, उतना ज्यादा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड होता जाएगा, वाइड होता जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि जो एक्टोपिक बीट थी ये कहाँ स्टार्ट हुई थी? ये इंट्रावेंट्रिकुलर मसल, ये वेंट्रिकुलर मसल में स्टार्ट हुई, ठीक है। और इसने ट्रैवल कैसे करना है? इसने ट्रैवल करना है थ्रू वेंट्रिकुलर मसल, तो इट विल टेक the conduction velocity would be slow,
तो इसकी वजह से जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो वाइडेंड आएगा, स्लर्ड आएगा, ठीक है, ये इसकी रीजन है। फिर हमने कहा कि इसकी वोल्टेज ज्यादा होगी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की। वो क्यों ज्यादा होगी? जैसे हमने इस डायग्राम में भी देखा, ये देखो कि जो प्रीमेच्योर बीट है उसकी वोल्टेज ज्यादा है, जो नॉर्मल बीट है उसकी वोल्टेज कम, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं कि ये क्यों आया। बिकॉज व्हेन वेंट्रिकल्स आर डीपोलराइज्ड, करंट डू नॉट, जो जो दोनों वेंट्रिकल्स का करंट है, ये यूजुअली नॉर्मली दे डू पार्शियली न्यूट्रलाइज ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करती हैं एक हद तक। जो दोनों वेंट्रिकल्स की करंट्स हैं, तो दोनों वेंट्रिकल्स का फ्लो है, वो एक दूसरे को पार्शियली न्यूट्रलाइज करता है, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का बहुत ज्यादा नहीं आता। लेकिन इस कंडीशन में जब प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन होती है, तो जो करंट फ्लो है वो ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शंस में नहीं होता, और वो एक दूसरे को ऑफसेट नहीं करता, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करता, ठीक है। सो वन एंटायर साइड और एंड ऑफ द वेंट्रिकल इज पोलराइज्ड, इज डीपोलराइज्ड अहेड ऑफ द अदर। तो इसकी वजह से जो फ्लो ऑफ करंट है वो वन डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शंस में नहीं है, जिसकी वजह से जो दोनों वेंट्रिकल्स का फ्लो है, वो जो करंट है वो एक दूसरे को पार्शियली न्यूट्रलाइज नहीं करता, और जिसकी वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का एम्पलीट्यूड कम रह जाता है, ठीक है। क्योंकि ये नहीं, सॉरी, डीपोलराइज नहीं करता, तो जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि करंट एक दूसरे, जो दोनों वेंट्रिकल्स का करंट है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे। सो देयर इज मोर करंट ऑफ फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज मोर, ठीक है। तो ये इसकी रीजन होगा, ठीक है जी। तीसरी बात हमने की थी कि नेगेटिव टी वेव पोटेंशियल टी वेव जो है वो नेगेटिव शो क्यों हो रही होती है, पॉजिटिव क्यों नहीं शो हो रही होती है। उसकी रीजन ये है कि द स्लो कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स थ्रू द कार्डियक मसल causes the muscle fibers that depolarize first also to repolarize first। अगर आपने वो करंट ऑफ इंजरी वगैरह पढ़ा है और वेक्टर्स वाले चैप्टर में आपने कुछ पढ़ा है इसके बारे में, तो एक बात आपको पता होगी, द पार्ट ऑफ द हार्ट which depolarizes first is the last to repolarize normally। Normally क्या होता है? The part of the heart which depolarizes first is the last to repolarize। ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्लो कंडक्शन हो रही है ड्यू टू ए वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट, तो इसकी वजह से इम्पल्स थ्रू द कार्डियक मसल कॉजेज द मसल फाइबर्स टू डीपोलराइज अर्ली टू रीपोलराइज अर्ली। वो डीपोलराइज भी जल्दी होते हैं, लेकिन रीपोलराइज भी अर्ली हो जाते हैं, ठीक है। वो अपने उसमें से डीपोलराइजेशन उनकी जल्दी जो है वो ओवर हो जाए, वो रीपोलराइजेशन आ जाती है, ठीक, जिसकी वजह से जो है वो हमारा जो पोटेंशियल है टी वेव का वो नेगेटिव हो जाता है बजाय पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि फ्लो ऑफ करंट उलट जाता है ना। देखो ना, पहले क्या था कि फ्लो ऑफ करंट जो था वो डीपोलराइज पोर्शन से जो है वो पोलराइज पोर्शन की तरफ रहना था, लेकिन अब क्योंकि जो डीपोलराइज पहले हुआ था वो रिपोलराइज भी हो गया है, पहले हो गया है, फर्स्ट हो गया है, सबसे जल्दी वही रिपोलराइज हो गया, तो फिर फ्लो ऑफ करंट उलट जाएगा। जब फ्लो ऑफ करंट हार्ट में उल्टेगा तो फिर टी वेव की पोटेंशियल भी उलट हमें नजर आएगा, वो भी हमें नेगेटिव वेव नजर आएगी, पॉजिटिव वेव नहीं नजर आएगी, ठीक है। ये भी उसने वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन में उसने कंपनसेटरी पॉज दिखाई, ठीक है, कि देखो ये सब नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, यहाँ पे प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन आई, ठीक। और उसके बाद इस प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन के बाद जो नेक्स्ट आई है उसमें देखो कितना लंबा पॉज है, पीछे आपको कहीं इतना लंबा पॉज नजर नहीं आएगा, यहाँ पे पॉज जो है वो लॉन्गेस्ट है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे कभी कहीं भी इतना लंबा पॉज नहीं, यहाँ इसके बाद प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन के बाद जो पॉज है वो लॉन्गेस्ट है, ठीक है। अच्छा जी, अब वो ये कहते हैं कि जो प्री वेंट्रिकुलर, ये जो प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शंस हैं, ठीक है, ये अगर आती है ना स्ट्रे इम्पल्सेस की वजह से, या आती है री एंट्री सिग्नल की वजह से, या स्ट्रे इम्पल्सेस ऑफ सम फोकाई या री एंट्री सिग्नल्स की वजह से अगर ये ओरिजिनेट हो रही हैं और रिपीट कर रही हैं,
So they are more dangerous. ठीक है? So they are much more dangerous. अच्छा, अब मुझे टाइम बता दें तो I'll either I'll go to the long QT syndrome or I will not. Okay, I think I'm already 3 minutes up. So I think now from this long QT syndrome, ठीक है, जो QT इंटरवल है ये बढ़ जाता है, ठीक. तो आई थिंक डॉक्टर शाहिना विल टेक अप फ्रॉम हेयर, ठीक है. फिर जब उनके लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे तो अगर फिर भी कुछ बच गया होगा तो डेफिनेटली देन आई विल टेक इट ओवर, या फिर डॉक्टर शाहिना ही इसको खत्म करेंगी अब, ठीक है. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मिस्टर मामून अहमद खान 1 PM. What do you think? Everybody else is blind. Okay, thank you so much, guys. Thank you so much for listening. And I'll tell Dr. Shahina that we are done up to premature contractions, and she would start with long QT syndrome. Okay. Thank you so much. Okay. Take care.